वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मगरबी ममालिक कभी भी हमारी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को नहीं समझ पाएंगे। मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वज़ीर आज़म ने इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान अमन को फैलाने में अपना किरदार अदा करेगा। I do not believe that the Western society understands the love, affection, reverence we have for our Holy Prophet Muhammad, peace be upon him. And because they do not understand this, we have surprise in the Western societies when any person mocks or ridicules our Holy Prophet, and they see this reaction amongst the Muslims. They don't understand it because they do not view religion like we do. I have spent a lot of my time in England because I studied there and played professional cricket there. And I know that they do not view religion like we do. The way they talk about religion, the way they talk about even Jesus Christ, peace be upon him, it is, they don't understand how Muslims love and respect their prophet. वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लाम में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। दुनिया भर में इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है। खदशा है कि भारत कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। भारत में किसी भी एक्शन का भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत में आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रही है। आरएसएस की शुरुआत कैसे हुई वो इंटरनेट पर देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों को बराबरी के हुकूक नहीं मिल रहे। मकबूजा कश्मीर के लोग कर्फ्यू में जिंदगी गुजार रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में मीडिया ब्लैकआउट है। My second point is about Islamophobia. Now, what the Western countries must realize, that there is only one Islam, and that is the Islam of the Prophet, peace be upon him. Like in every human community, they are moderates, they are radicals, they are intellectuals, and they are extremes. Same in the Muslim community. But there is only one Islam. So when terms like Islamic terrorism are used, unfortunately, this creates what I believe one of the main reasons it creates Islamophobia. Because when words are used like this is a radical Muslim or this is a Muslim extremist or Muslim terrorist, how is the man in the street in the Western society supposed to distinguish between what is a moderate Muslim and what is a radical Muslim? So the whole Muslim community gets tainted by that. And so every Muslim becomes suspect. And then you have people like the gunman who walks into a mosque and shoots Muslims because he can't distinguish. He feels that all Muslims are terrorists. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मगरबी दुनिया को आरएसएस के इंतहा पसंद नजरियात को समझना होगा। आज़ादी इजहार का मतलब ये नहीं कि किसी के मजहबी जज्बात को मजरूह किया जाए। इमरान खान का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में आरएसएस के गुंडे दहशतगर्दी कर रहे हैं। भारत का सेक्युलरिज्म खतरे में है। इमरान खान का मजीद कहना था कि भारत फरवरी जैसा एडवेंचर दोबारा कर सकता है। खदशा है भारत कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के किसी भी एक्शन का भरपूर जवाब दिया जाएगा। And that is what I want Islam to do. Raise awareness. In the 21st century, this is happening. And this is happening, an ideology which openly states that they want to change the demography of the people of Kashmir, which openly states that the Muslims do not have the same rights in India as the Hindus. They have completely cast aside the secularism of Nehru and Gandhi. And I'm afraid this ideology is not going to stop here. I think they have let out of a genie out of a bottle. It's not going to go back in. This genie of hate, of Hindu supremacy. It's not just the Muslims who are going to be a threat. And I am again almost 200 million Muslims in India. Pakistani, wo
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि फ़ज़ाई हदूद बंद करने का फैसला वजीर आज़म ने करना है। वजीर आज़म मुनासिब वक्त पर फ़ज़ाई हदूद बंद करने का फैसला करेंगे। कश्मीर के मसले का करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं, कश्मीर सेल हर पहलू पर गौर व फिक्र करके तजवीज़ देगा। वजीर आज़म 27 सितंबर को जनरल असम्बली में मकबूजा कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा का कहना था कि वजीर आज़म अमरीका के दौरे में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मोदी दुनिया में जहां गए मुंह की खानी पड़ी। मोदी 40 मुल्कों के दौरे पर नहीं गए, मोदी दौरे करते रहे, लेकिन दौर बदल चुका है। भारतीय जारहियत पर खातिर ख्वाह जवाब दिया जाएगा। 9 सितंबर को जेनेवा में इंसानी हुकूक की तंजीम में भारत का चेहरा बेनकाब करूंगा। वजीर खारजा का मजीद कहना था कि OIC ने मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू हटाने का मुतालबा किया है। OIC के अरकान ने मुत्तफिका बयान दिया है। मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है दुनिया देख रही है। उम्मीद है दीगर अवाम और मुस्लिम उम्मा भी आवाज बुलंद करेगी। जमात इस्लामी की जानिब से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए शारा फैसल पर आज़ादी कश्मीर मार्च किया गया। कराची में शदीद बारिश के बावजूद जमात इस्लामी के आज़ादी कश्मीर मार्च में हज़ारों अफराद ने शिरकत की, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। मुजाहिरीन ने हाथों में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचम, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर कश्मीर से इजहार यकजहती और भारत के खिलाफ नारे दर्ज थे। कश्मीर रैली से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि कश्मीर में भारत के इक़दाम की मजम्मत करते हैं। कश्मीर हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। अगर हम कश्मीर में आज़ादी की जंग हार गए तो इंडिया में हमारे करोड़ों भाई बहनों की जानो माल और इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे हिंदुस्तान के मुसलमानों का पैगाम मिला है कि मोदी ने कहा है कि मैंने हिंदुस्तान की तमाम मसाजिद को मस्मार करके वहाँ मंदिरों को तामीर करना है। उन्होंने कहा कि जिद्दोजहद के नतीजे में कई पाकिस्तान बनेंगे और हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े होगा। ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि पूरी कौम का मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान अपना फर्ज अदा करे और भारत को मजबूर करे कि कश्मीर से अपनी फौज को निकाले। पूरी कौम का डिमांड है कि हुकूमत पाकिस्तान कश्मीर की आज़ादी के लिए अमली इक़दाम करे, अपना फ़र्ज़ अदा करे और इंडिया को मजबूर करे कि वो अपनी अफवाज को मकबूजा कश्मीर से वापस निकाले। आज हमारा कहना यही था कि 370 दफ़ा की बहाली या 35A की बहाली मसाइल का हल नहीं है। उसके बाद भी हमारा यही मुतालिबा रहेगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी जारी है, जिसे अवामी हलकों की जानिब से सराहा जा रहा है। यौम आज़ादी के मौके पर शहर इक़्तिदार में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई थी। शहरियों की जानिब से हुकूमती इक़दाम को सराहा जा रहा है, ताहम इस बात का शिकवा भी किया जा रहा है कि हुकूमत को पाबंदी से पहले उसका मुतबादिल लाना चाहिए था। शहरियों का कहना है कि हम खुद चाहते हैं कि हमारा मुल्क और शहर साफ सुथरा नजर आए, लेकिन हुकूमत को पाबंदी के अलावा मजीद अहम इक़दाम उठाना चाहिए। ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए एक शहरी रशीद अहमद ने राय दी कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो डायरियां और कैलेंडर्स छपवाती हैं, वो इस बार कपड़े के बैग्स पर अपना लोगो छपवाएं, ताकि उनकी तशहीर के साथ माहौल दोस्ती का पैगाम भी जाए। ये जो आज हुकूमत जो फैसला किया है कि प्लास्टिक के जो बैग हैं इनको ख़त्म किया जाए और इससे मुल्क को पाक किया, ये बहुत अच्छा फैसला है। ये इंटरनेशनली फैसला है, ये कोई पाकिस्तान का नहीं है, ये तमाम दुनिया में इसको यानी इसी पे अमल किया जा रहा है। इसके बहुत से नुकसानात भी हो रहे थे।
بہت سی صفائی میں مسئلہ بن رہا تھا اور بھی اس کے بہت سے یعنی مضر اثرات تھے. تو یہ ایک بہت اچھا کام ہوا ہے. میرا صرف یہ تجویز یہ ہے کہ جتنی بڑی کمپنیاں جو ہیں یہ جو ڈائریاں اور کیلنڈر چھاپتی ہیں ان کو میرا مشورہ ہے کہ یہ بجائے ڈائری اور کیلنڈر چھاپنے کے یہ اس دفعہ بیگ بنا کے دیں کپڑے کے لوگوں کو, اس پہ اپنا مونوگراف بنائیں تاکہ ان کی ایڈورٹائزمنٹ بھی رہے گی اور یہ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ بھی اس کا ہو جائے گا. تو تمام بڑی کمپنی جتنی بھی ہیں ان کو بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی وہ ڈائری اور کیلنڈر میں, ڈائری اور کیلنڈر کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے کہ ہر ایک کے پاس موبائل ہے اس میں کہ سب کچھ مل جاتا ہے. بہتر یہ ہے کہ وہ بیگ بنا کے دیں تاکہ ہر بندے کے اپروچ اور اس پہ آ جائے. اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بیگ بنانا پلاسٹک کے بیگ والی کمپنی جو ہے اس کو, بلکہ اگر کپڑے کے بیگ بنیں گے تو اس سے بہت سی انڈسٹری چلے گی, خواتین جو ہیں وہ اس پہ کام کریں گی. تو لہذا یہ بیگ کا جو پلاسٹک کا بیگ کو ختم کرنا یہ بہت ضروری تھا اور اس سے بہت حد تک فائدہ ہوگا ملک کو. ایک دکاندار کا کہنا تھا کہ متبادل لانے کے بعد پابندی لگائی جاتی ہے. پلاسٹک بیگز پر پابندی کے حق میں ہیں, تاہم اس کا متبادل لایا جائے پھر پابندی لگائی جائے. پابندی تو انہوں نے لگائی ہے لیکن پابندی اس ٹائم منع لگاتا ہے جب اس چیز کا متبادل حل نکالنے کے بعد پابندی لگانا ان کا حق بنتا ہے. لوگوں کو بڑے پرابلم ہوتی ہے, ادھر سے لوگ شام بیگ میں چیز گھر کو لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ہم نے پلاسٹک یہ شام بیگ استعمال کرنے مجبوری شروع کیے ہیں. کسی کا راستے میں ہی ڈیمیج ہو جائے, بارش لگ جائے تو ادھر پیاز نیچے گر جاتا ہے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے ہم اس کے حق میں ہے کہ شام بیگ ختم ہو جائے, کیونکہ اس سے کئی بیماریاں کئی اور جو وجہیں ختم ہو جائیں گی. لیکن اس کا متبادل حل پہلے کریں, اس کے بعد شام بیگ بند کریں, کیونکہ عوام کو بہت ڈسٹرب ہو رہی ہے. آگے حکومت کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں, حکومت کام صحیح نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, کام یہ صحیح کر رہی ہے لیکن ہم لازم ہیں کہ پہلے اس کا متبادل حل کریں, اس کے بعد شام بیگ کو بند کر دیں. ہم بہت ڈسٹرب ہیں وجہ سے. ایک اور دکاندار کا کہنا تھا کہ